Actually, lecture will be delivered later. First of all, we should start our speaking segment because I know that if I start my lecture first, then you'll forget your cramming, means what you have crammed. Actually, in initial stages, I know students cram introduction and a daily routine and all the things. That's why, first of all, we'll start our speaking segment and after that, we'll go towards our lecture. It's okay? It's for your convenience, not for me. Uh, if you are comfortable with that, I can deliver the lecture first. But especially, I know that in initial stages, students cram introduction, students cram daily routine, vocabulary, and all the things. That's why I start speaking segment for your convenience. Now you will come here one by one and introduce yourselves. It's okay? Sorry? Okay, one thing more that has to be mentioned over here and that must be cleared. It's okay? Why do I call you to come over here? What's the main reason behind it? Because I want you to overcome your hesitation and to become confident. When you come over here, means you come on the stage, you stand in front of the people, you stand in front of your classmate, you stand in front of your friends, your colleagues, and you speak in front of them. What happens? You become confident and you overcome your hesitation. That's the main reason. That's why I call you to come over here. Otherwise, if you stand over there and you speak from that place, it's okay. And even you are sitting, I don't have any problem. I need your speaking, but especially when you become confident and when you remove your hesitation, it's okay. And when you overcome your hesitation, what happens? Then you speak very easily and fluently. That's the main reason that I call you to come on the stage, to come over here and speak in front of your friends, your colleagues, your classmates. That's the main reason. It's okay. So now you'll come here one by one and you will introduce yourselves. It's okay? Got? First of all, Mujib, come over here and introduce yourself. Okay. Okay, now we should start our lecture. And after the lecture, we'll listen to a video, means a story. You will listen to that and you will get that. You will understand that what is saying in the story. It's okay? That will be regarding our listening segment. Now we should start our lecture. कल मैंने आपको एक बात बताई थी लास्ट में, याद है किसी को? मैंने कल आपको बताया था कि जो नाउन्स और प्रोनाउंस है हमने उसके दो ग्रुप बनाने हैं और मैंने ग्रुप्स बनाए भी थे, याद है? और मैंने उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया था कि आपने इन दो ग्रुप्स पे रट्टा लगाना है, आपने इन दो ग्रुप्स को क्रैम करना है, हिफ्ज़ करना है आपने, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वही दो ग्रुप आज मैंने दोबारा यहाँ पर लिखा है, ठीक है? अगर किसी को याद ना हो तो मैंने आपकी याद दिलाने के लिए यहाँ दोबारा मैंने लिखा है। ग्रुप नंबर 1 में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है, कौन कौन से नाउन्स और प्रोनाउंस है? ग्रुप नंबर 1 में है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन यानी एक नाम, ठीक है? ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन से नाउन्स और प्रोनाउंस होंगे? ग्रुप नंबर 2 में आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। अभी समझ आया? आसान अल्फाज में आप इस तरह याद करें, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन ग्रुप नंबर 1 के मेंबर्स हैं, आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन ग्रुप नंबर 2 के मेंबर है। आपने इस तरह याद करना है जिस तरह मैंने याद किया है, ठीक है? बस यहाँ तक आपके माइंड में ये समझ आया तो अब टेंस हमारे लिए आसान होगा, ठीक है? अब हम आते हैं अपने आज के लेक्चर पे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने डायरेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू किया। मैं आपके माइंड में जो क्वेश्चन है वो क्लियर करना चाहता हूँ। एक्चुअली ट्रेडिशनली इस तरह होता है कि हमारे क्लासेस में पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए जाते हैं और फिर उनके बाद टेंसेस पे आते हैं।
या इस तरह होता है कि हमें पढ़ाया जाता है कि हमारे पास 3 टेंसेस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और फिर इन तीनों टेंसेस में फर्दर 4 टेंसेस हैं, तो ये टोटल 12 बन जाते हैं। इस तरह होता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके से पढ़ाऊँगा, ठीक है। और हम टेंसेस के एक एक रूल पे प्रैक्टिकली हम स्पीकिंग भी करेंगे और हम उस पर राइटिंग भी करेंगे। यानी आपने टेंसेस को वो पुरानी तरीके से याद नहीं करने हैं, हमने प्रैक्टिकली इस पे वर्क करना है। ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ओके गाइज, तो आपने टेंसेस के बारे में टेंशन नहीं लेना। इनिशियली मैं बहुत थोड़ा सा आपको पढ़ाऊँगा और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। तो आपने टेंसेस से घबराना नहीं है, ठीक है। मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊंगा और फिर आपसे कभी भी नहीं भूल जाएंगे। आप अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे, टेंशन ना ले, ठीक है। अब हम आते हैं और लेक्चर शुरू करते हैं, क्योंकि बातें तो बहुत करते हैं लेकिन कुछ सीखते भी हैं, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करना चाहूँगा। वो ये है कि जिस स्टूडेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ आया, तो इसका मतलब ये है कि उसको आधे से ज़्यादा इंग्लिश समझ आया, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेंस है वो कौन सा है? वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। बस अब शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो उर्दू में पहचान है, ये हमने ज़रूर अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स कल एग्जामिनेशन में बैठते हैं और उन्हें ट्रांसलेशन के लिए एक पैराग्राफ दिया जाता है, तो जब आपको उर्दू में पहचान मालूम ना हो तो फिर आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे उर्दू का पहचान भी साथ साथ लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं, आपने उर्दू के सेंटेंस के लास्ट को देखना है, और जब आखिर में आ जाए ताहे, तीहे, ताहूँ, तेहे, तो ये कौन से टेंस के सेंटेंसेस होंगे? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस होंगे। ये यहाँ तक समझ आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे हैं कि वो पानी पीता है। लास्ट में यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या आया है? ताहे आया है, ताहे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ताहे, तो कौन से टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है, ठीक है। दूसरे सेंटेंस को देखिए, वो स्कूल जाती है। लास्ट में क्या आया है? आखिर में आया है ती है। तो हमें पता चला कि कौन से टेंस का जुमला है, कौन से टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। थर्ड सेंटेंस को देखिए, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो जब तेहे आ जाए तो कौन से टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। फोर्थ सेंटेंस को देखें, मैं चाय पीता हूँ। ताहूँ आया है, और जब ताहूँ आ जाए तो कौन से टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। यहाँ तक आपको समझ आया कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, जब आपने ट्रांसलेशन करना है, तो ट्रांसलेशन के दौरान आपने उर्दू के जुमले के आखिर को देखना है, और जब आखिर में ताहे, तीहे, ताहूँ, तेहे ये आ जाए तो ये कौन से टेंस के सेंटेंसेस होंगे? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस होंगे, ठीक है। उर्दू में तो आपको पता चला कि उर्दू में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान क्या होगी। यहाँ तक तो आपको समझ आया। अब हमने इंग्लिश के रूल्स अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंग्लिश के रूल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। इंग्लिश में जो वर्ब है, वर्ब के 3 फॉर्म्स है, ठीक है। बेसिकली कितने फॉर्म्स हैं?
3 फॉर्म्स, और फिर उसके बाद चौथा हम आईएनजी इस्तेमाल करते हैं कि यह चौथा फॉर्म है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के साथ वो आईएनजी लगाते हैं, वो बाद में हम अंडरस्टैंड करते हैं। पहले आपने वर्ब्स के कौन से फॉर्म अंडरस्टैंड करने हैं? 3 फॉर्म्स, ठीक है, 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ये है कि हमारे पास अगर आ जाए गो, तो गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट ये सेकंड फॉर्म है, और गॉन ये थर्ड फॉर्म है। ये कौन सा है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और ये हो गया थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसी तरह ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे? ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ आया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब जो दूसरा रूल है इंग्लिश का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो ये है कि इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, तो आपने उनके साथ क्या लगाना है? सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड, ठीक है। सिंपल अल्फाज में इस रूल से मुराद ये है कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन आ जाए, तो उन सब्जेक्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है, सिंपल आसान अल्फाज में, ठीक है। अब अगर इन सेंटेंसेस को देखें तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। रूल में क्या है कि अगर सब्जेक्ट के तौर पर आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन आ जाए, तो उनके साथ, इन सब्जेक्ट के साथ क्या इस्तेमाल होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है, सिंपल। अभी समझ आया? देखिए, मैं कहता हूं कि मैं पानी पीता हूं, मैं पानी पीता हूं, तो मैं के लिए क्या इस्तेमाल होता है? आई, तो सब्जेक्ट की जगह पे क्या आ गया? आई, और जब सब्जेक्ट की जगह पे आई आया, मैं का लफ्ज़ यानी आई आ गया, तो इसके साथ क्या इस्तेमाल होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है, सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर अगर आप देखें तो जब आई सब्जेक्ट की जगह पे आ जाए, तो आपने उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है, सिंपल। अभी समझ आया? इसी तरह मैं कहता हूं कि हम पानी पीते हैं, तो वी जब सब्जेक्ट की जगह पे आया, तो आपने उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करना है? सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसी तरह यू, तुम पानी पीते हो, तो जब मैंने कहा यू, तो यू के साथ आपने वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करना है? फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसी तरह वो पानी पीते हैं, दे, तो जब दे सब्जेक्ट की जगह पे आ जाए, आपने उनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है। इसी तरह प्लूरल नाउन जब आ जाए, तो अली एंड सोना दो नाम है, तो क्या है? प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन के साथ आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है, सिंपल, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि कैट्स ड्रिंक वाटर, तो आप यहाँ पर देखें, कैट्स क्या है? प्लूरल नाउन है, कैट्स का सिंगुलर क्या है? कैट, वेरी गुड, ठीक है। कैट है सिंगुलर और कैट्स क्या है? प्लूरल। तो जब हमारे पास कैट्स आया यहाँ पे, तो इस प्लूरल नाउन के साथ हमने वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करना है? फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है। ये रूल आप सबको समझ आया? एक मर्तबा फिर सिंपल अल्फाज में आप देखें कि सेंटेंस में हमारे पास कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सब्जेक्ट की जगह पे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन जब आ जाए, तो इन सब्जेक्ट्स के साथ आपने वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करना है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करना है, सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ना, सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहां तक आपको समझ आया? क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। अब ये जो है रूल नंबर 3 जो है, ठीक है,
थर्ड रूल जो है वो ये है कि इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज, यानी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन, तो आपने उसके साथ क्या करना है, इस और es विल बी एडेड विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस रूल को आप देखें सिंपल वर्ड्स में। इस रूल में कहा गया है कि सेंटेंस में जब सब्जेक्ट की जगह पे या सब्जेक्ट के तौर पे जब ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आ जाए तो आपने इन सब्जेक्ट के वर्ब के साथ एस या es का इजाफा करना है। ठीक है, ये रूल जो है ये हम कल इसी तरह डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि आज हमने स्पीकिंग प्रैक्टिस और राइटिंग प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ इस एक रूल पे करना है। ठीक है गाइस, कल हम इस रूल को सही तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, अब जो हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, तो अब मैं इन सब को सिंपल और ब्रीफ अल्फाज में समझाना चाहूँगा। ठीक है, वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उर्दू का पहचान किया है, वो ये है कि उर्दू के जुमलों के आखिर में आता है ताहे, तीहे, ताहूँ, तेहे वगैरह, ये आता है। ठीक है, जब आपको उर्दू के सेंटेंस के लास्ट में ये अल्फाज नज़र आए तो वो कौन से टेंस के सेंटेंसेस होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। ये तो क्लियर हो गया। अब इस टेंस के इंग्लिश के जो रूल्स हैं, उन रूल में सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि इस टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है। ये क्लियर है। अब रूल नंबर 2 ये है कि जब सब्जेक्ट की जगह पे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन आ जाए तो आपने उन सब्जेक्ट्स के जो वर्ब्स है आपने उनके साथ सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है। यहाँ तक क्लियर है। और रूल नंबर 3 जो है वो ये है कि अगर सब्जेक्ट की जगह पे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आ जाए तो आपने उन सब्जेक्ट्स के वर्ब के साथ फिर एस या es का इजाफा करना है। ये 3 रूल्स हमने पढ़े। अब ये तीसरा रूल जो है ये हम कल डिटेल में पढ़ेंगे और दोबारा अंडरस्टैंड करेंगे। आज आपने सिर्फ इन 2 रूल्स पे काम करना है। ठीक है, अब आते हैं कि हमने इन दोनों रूल्स को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरह इस्तेमाल करना है और ये हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, 1 बाय 1 मैं सेंटेंस बोलूँगा और आपने उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने जो सेंटेंसेस लिखे हैं उनको देखें। मैं कहता हूँ कि मैं पानी पीता हूँ, तो मैं के लिए क्या, आई ड्रिंक वाटर। आई के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई ड्रिंक वाटर। हम पानी पीते हैं, वी ड्रिंक वाटर। वेरी गुड। अब तुम पानी पीते हो, यू ड्रिंक वाटर। वो पानी पीते हैं, दे ड्रिंक वाटर। अली और सोना पानी पीते हैं, अली एंड सोना ड्रिंक वाटर। ठीक है, बिल्लियां पानी पीते हैं, कैट्स ड्रिंक वाटर। वेरी गुड। अब मैं कहता हूं मैं खत लिखता हूं, लिखने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, राइट वर्ब इस्तेमाल होता है। मैं खत लिखता हूं, आई राइट अ लेटर। वेरी गुड। मैं मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता हूं, आई यूज़ मोबाइल फ़ोन। हम नमाज पढ़ते हैं, वी ऑफर द प्रेयर। पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, ऑफर भी इस्तेमाल होता है, परफॉर्म भी इस्तेमाल होता है, सही भी इस्तेमाल होता है। तो आप कह सकते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं, वी ऑफर द प्रेयर, वी say द प्रेयर, वी परफॉर्म द प्रेयर। ठीक है, तीनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। जाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, गो। ठीक है, वी
go to school. हम खाना खाते हैं, we eat. खाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? eat. We eat the meal. ठीक है। हम चाय पीते हैं, we take tea. चाय पीने के लिए टेक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, क्या? टेक। वी टेक टी, हम चाय पीते हैं। नस्वार, हम नस्वार रखते हैं, हम नहीं, तुम नस्वार रखते हो, यू टेक स्नैप। ठीक है, यू टेक स्नफ, SNUFF स्नफ, नस्वार। आप नस्वार भी लिख सकते हैं क्योंकि ये पश्तो का टर्म है। ठीक है, नस्वार मेरे ख्याल में पश्तो का टर्म है। यू टेक स्नफ। हम सिगरेट पीते हैं, वी स्मोक सिगरेट। सिगरेट पीने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? स्मोक। अभी पीने के लिए 3 अल्फाज हमने इस्तेमाल किए। एक पीना, पानी पीना, तो ड्रिंक वाटर। चाय पीना, टेक टी, और सिगरेट पीना, स्मोक सिगरेट। समझ आया आपको? ओके गाइज, इतना काफ़ी है। ठीक है, अब इस तरह करते हैं कि आप सब ने कल अपना डेली रूटीन लिखना भी है और आपने अपने डेली रूटीन को यहाँ पे आके बोलना भी है। तो राइटिंग के लिए भी डेली रूटीन और स्पीकिंग के लिए भी क्या? डेली रूटीन। समझ आया? सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन करेंगे और इंट्रोडक्शन के बाद आप कहेंगे कि टुडे माय टॉपिक इज़ डेली रूटीन। ठीक है, फिर आप क्या कहेंगे? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, जागता हूँ। ठीक है, तो गेट अप का मतलब क्या है? जागना। फिर उसके बाद वो सारे डेली रूटीन मैंने बुक में लिखे हैं, आपने बुक के डेली रूटीन को देखना है, पढ़ना है और उसके मुताबिक आपने अपने डेली रूटीन आपके जो डेली रूटीन है आपने वही अपने नोटबुक में लिखना है, असाइनमेंट पेपर पे लिखना है और फिर उसे याद करके यहाँ पे आपने कल बोलना भी है। गाइज़, मैं आपको एक पॉइंट जो है ना वो क्लियर करना ज़रूर चाहूँगा। वो ये है कि जो हमारे डेली रूटीन्स है, ठीक है, वो डेली रूटीन जो है वो कौन से टेंस में हम बोलते हैं? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, डेली रूटीन के लिए कौन सा टेंस इस्तेमाल होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्यों? क्योंकि जब आप बोलते हैं कि मैं, तो आप कहते हैं मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। पहले तो उर्दू के सेंटेंस को देखिए तो ताहू आया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इंग्लिश में देखिए, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आई के साथ आपने क्या इस्तेमाल किया? गेट अप। और गेट अप क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। फिर आप कहते हैं आई मेक एब्लूशन, ये आई टेक बाथ। तो अब देखें, आई के साथ आपने क्या इस्तेमाल किया? टेक, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। या आई मेक, तो मेक आपने क्या? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल किया। फिर आप कहते हैं आई गो टू मास्क, मैं मस्जिद जाता हूँ। आई गो टू मास्क, गो कौन सा है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो कौन सा टेंस इस्तेमाल होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है। मैंने लेक्चर के शुरू में आपको क्या कहा था कि हम इस पर प्रैक्टिकल वर्क करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है हम अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कल जब आप आएंगे तो आप अपने डेली रूटीन बताएंगे। आप कल अपने पेपर में, अपने असाइनमेंट पेपर पे डेली रूटीन लिखेंगे। तो आप कौन से टेंस पे प्रैक्टिस करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे आप प्रैक्टिस करते हैं। अभी समझ आया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कौन से जगह पे इस्तेमाल करते हैं? अपने डेली रूटीन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। अभी समझ आया? मैं आपको ये इसलिए क्लियर करना चाहता था कि आपके माइंड से ये एम्बिग्विटी क्लियर हो जाए। ओके गाइज, अब हम आते हैं कि लिसनिंग सेगमेंट पे और देखते हैं एक छोटा सा वीडियो। ठीक है, अब ये देखते हैं।